So far we have done 3 methods, 2 methods for constant optimization, उस पे हमने graphical method करा, and Lagrange's method, है ना? And for unconstant we have done one method already, your gradient method. Next method we were talking about Newton's method for unconstant problems. Newton's method. So as I told you, I started this topic in the last lecture. So I told you it is based on the Newton's root formula, Newton-Raphson formula, which you have done in numerical analysis. कुछ उसी जैसा फॉर्मूला है. न्यूटन राप्सन का फॉर्मूला आपका होता था, if you want to find n+1 value, so its formula was xn minus fxn upon f dash xn. It was the formula for if you have some function fx and you want to find the root of this polynomial, the value of this. So this is the iterative method. So same here, if I want to find the k+1 find, so I can find x of k+1 क्योंकि it is for function of several variable. आपके पास पॉइंट जो Rn में होगा, यहाँ पे तो आपका R पे होता था, इसका डोमेन R था, तो इसलिए I am using k+1 on the upper script. So k+1th value will be kth value s, यहाँ n था, यहाँ n+1 था, यहाँ k minus hf xk its inverse, नहीं अपॉन में f dash x को मैं ऊपर लिख दूं तो इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका इनवर्स लिख दिया है, एंड ग्रेडियंट ऑफ f of x. So it is the formula for finding your k+1 value. This whiteboard is visible या कुछ प्रॉब्लम हो रही है भाई? Visible. ठीक है. So here this hfxt is what? This is your Hessian matrix. This is called Hessian matrix. जो second order की matrix आपकी होती है, which we have find when we were doing Lagrange's method. Hessian matrix. So I will be using this. One advantage is there, if you have quadratic form, then only in one iteration you will be getting your answer. इसमें एक advantage है कि if you are solving a positive definite quadratic form, you can find the solution in exactly one iteration, है ना? You can write this for positive definite quadratic form. I will explain what is this definite quadratic form. अभी बताऊंगा भाई. Only of n variables. Variables हमारे पास n हो सकते हैं. Only one iteration is required. Only one iteration is required. What is positive definite quadratic form? So suppose if you have a polynomial like this, अगर मैं Q में लिख दूं polynomial x1, x2, xn in n variable, then the highest degree is 2. Suppose you have c1 x1 square, जनरल लिख रहा हूं मैं, c2 x2 square and so on, cn xn square. अब इसमें जरूर नहीं c2 0 हो जाएगा तो मे बी x3 स्क्वायर, लेकिन जो पॉलिनोमियल से इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, एंड प्लस समीशन डी आई जे एक्स आई एक्स जे, ये प्रोडक्ट का टर्म होगा इनका, आई लेस देन जे, दिस इज द प्रोडक्ट टर्म, डी आई जे सम कांस्टेंट, है ना? जैसे आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मैं ले लूं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर plus 2x1 x2 like this. So it is your positive quadratic form. So here you have x1 I less than j, इसलिए कि repeat now, repeat होगा तो उसी में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमने strictly less लिख दिया. तो like if you have 3 तो क्या हो जाएगा x1 square plus x2, अगर if you have 3 suppose R3 में अगर ये है तो it will be like x1 square plus x2 square. अब x3 square may be 0, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये हो,
या अगर है तो इट मे बी दिस, और इसके कुछ कोएफिशिएंट जरूरी नहीं हो, इट मे बी 2, इट मे बी 4, एंड देन देयर सम लाइक 5x1 x2 प्लस सम 4x1 x3 प्लस 8x2 x3 ना, लेस देन जैसे ये हुआ कि रिपीट नहीं होगा। अगर x3 x2 या x2 x3 लिखेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। इफ यू आर राइटिंग x2 x3 इज इक्वल टू x3 x2, क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो इससे क्या होगा, रिपीटेशन नहीं। तो लाइक दिस, सो दीज आर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री इज 2 एंड यू हैव सम प्रोडक्ट टर्म। इसमें सिंगल टर्म नहीं आएगा कोई, लाइक यू विल नॉट हैविंग 4x1 या 6x3 या सम प्लस 8, it is not there, these terms are not there. You will be having every term should be of second degree, that is called positive quadratic form कराती है basically, it is called quadratic form. Quadratic form. ठीक है, इसको भी अगर आप समीशन में लिखना चाहें इन जनरल तो यू कैन सी समीशन CI XI स्क्वायर प्लस समीशन DIJ XI XJ। इसको समीशन इज रनिंग फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n and I लेस देन j, जो ही पॉसिबल फॉर्म है। तो इसे इन जनरल यू कैन राइट इन दिस वे। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, इट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। इट इज पॉजिटिव डेफिनेट Qx1 x2 xn, it is positive definite if the diagonal, देखो हर क्वाड्रेटिक फॉर्म को आई कैन राइट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी एक मैट्रिक्स बन सकती है आपकी, कितने बाय कितने की बनती है, जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही मैट्रिक्स बनेगी। अगर 3 वेरिएबल्स है तो यू विल बी गेटिंग अ 3x3 मैट्रिक्स। हाउ आई विल राइट द एंट्रीज, आई विल टेल यू। तो इफ यू आर राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इफ द डायगोनल एंट्रीज, मैट्रिक्स भी सिंपल है। अगर 1 स्क्वायर है तो ये आपका हो गया 1 1। कोई भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या लेते हैं, A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे तो लिखते हो 1 2 1 3। फिर A2 1 A2 2 A2 3। थर्ड एंट्री क्या होती है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये तो लेते हैं। तो अगर आप इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहें यू कैन राइट इट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द मैट्रिक्स, कोई बता सकता है? अगर मैं इसकी मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, सपोज ये जो मैंने अभी फॉर्म लिखी थी, इसकी मैट्रिक्स क्या होगी बताइए। तो 1 1 में कौन सा आएगा, 2 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा, है ना। तो 5 है, लेकिन हम इसका क्या लिखते हैं, इसका हम लेंगे -5 हाफ, नहीं -5 नहीं, इसका हाफ लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है हाफ, क्योंकि ये आपका रिपीट होता है एक्चुअली। यहाँ 1 2 है 2 1 है, तो इसका हाफ लूंगा मैं, माइनस नहीं साइन तो ही रहेगा, तो 5/2। और 1 3 मीन्स ये क्या था 1 2, सॉरी 1 2 5/2, 1 3 इज 4/2। अब 2 1 क्या है, यही 1 2 इज 2 1, सेम 5/2 और ये x2 2 मीन्स सेकंड डायगोनल एंट्री 1 1, और 2 3 मीन्स 8 8/2 4, 3 1 is again 4, 3 2 means 3 2 2 3, कहाँ है 2 3, 4 हाँ 4 नहीं तो 3 1 क्या था, 3 1 आपका ये 2 था, 2 होगा सॉरी, 3 1 2, और ये 4 4 और ये 4 4। तो यू कैन सी, अब ये मैट्रिक्स कैसी है देखो, ये दिस इज लाइक अ मिरर। तो अगर डायगोनल मिरर हो जाए तो क्या बनती है मैट्रिक्स, वो जो एंट्री यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। देखिए यस तो इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आई कैन राइट दिस। तो यू कैन राइट अ पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स फॉर्म आल्सो। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म को अगर लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट, ये जो पॉलिनोमियल है इसको वी कैन राइट, अगर ये मैट्रिक्स ए है इसकी सपोज, तो यू कैन राइट ए ट्रांसपोज एक्स ए,
x का मतलब है x1 x2 x3, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही प्रोडक्ट बन के आ जाएगा. So it is the diagonal, it is the matrix representation. So if you are writing a polynomial in the matrix representation like this, then this is positive definite if the diagonal entries are all positive in any diagonal representation of Q. Means what? कि आप जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसे आप चेंज करें डायगोनल रिप्रेजेंटेशन. डायगोनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ कि यू जस्ट चेंज इट इनटू अ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? वेयर योर डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देते हैं. जैसे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1 2 है ना. तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. ओनली डायगोनल पे 1 1 होता है, नॉन जीरो एंट्रीज. So if you change it into diagonal representation and by changing the diagonal entries are all positive, तो उसको हम कहते हैं positive definite. ठीक. अगर if it is in two variable में diagonal अगर आपको चेक करना है whether this positive definite or not, तो 2 उसमें क्या होगी? सपोज ax1 स्क्वायर प्लस सपोज bx1 x2 plus cx2 square ना. So 2 in two variables, you know, only this is the possibility of quadratic form. ये तो possibility है. It is positive definite. So up to 2 variables you can check by this formula. If and only if a is greater than 0 and b square minus 4ac means discriminant, it is less than 0. अगर ये है तो ये आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होगी. ठीक है. 2 के लिए हम चेक कर सकते हैं. 3 के लिए यू हैव टू अप्लाई दिस डायगोनल रिप्रेजेंटेशन. So this is called positive definite quadratic form if this is happening. क्लियर है भाई ये चीज? इज इट क्लियर? सर सी पॉजिटिव कंडीशन नहीं होगी? है नहीं, सी पे तो यहाँ सी इसमें आ गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ सी यूज होगा आपका. ए डायगोनल पॉजिटिव होना चाहिए ना. हाँ तो डायगोनल में सी तो आएगा ना, ए और सी. नहीं, डायगोनल या डायगोनल में आप चेंज करेंगे इसे. फिर डायगोनल इसे अगर आप इसकी डायगोनल फॉर्म लिखेंगे तो आएगा ए सी b/2 b/2 है ना. अब या तो आप इसको चेंज करके यू जस्ट चेंज इट एंड राइट इट सम डायगोनल फॉर्म. इसे हम चेंज करेंगे, इसको 0 बनाएंगे आप बाय टेकिंग दिस, फिर से 0 बनाओगे तो चेंज करके कुछ न्यू आ जाएंगे. सपोज a1 b1 0 0. अब अगर ये a1 b1 पॉजिटिव है तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा. तो वन वे इज दिस कि इसको चेंज करें या डायरेक्ट आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं. ओके है ना. ये वाला फॉर्म तो है ही हमेशा कि आप इसको डायगोनल में चेंज करें. जैसे प्रॉब्लम जैसे में ये है, जैसे मान लो आई एम राइटिंग वन पॉलिनोमियल, जैसे ये है सपोज 8x1 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 एंड प्लस 5. सपोज दिस इज आई एम टेकिंग द पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल्स में ले रहा हूँ. सो हियर यू वांट टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव डेफिनेट और नॉट, है ना. तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो a इज 5, ये सॉरी ये क्या था 5x2 स्क्वायर है, सॉरी है ना. a इज 5 ग्रेटर देन 0 है एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज हाउ मच? चेक कर लीजिए. 4 माइनस 4 स्क्वायर इज 36 माइनस 4ac 4 इंटू 8 इंटू 5, जाहिर है लेस देन 0 ही आएगा. चेक कर सकते हैं ना. सो इट इज पॉजिटिव डेफिनेट. अब इसे अगर मैं डायगोनल फॉर्म में चेक करना चाहूँ, आई हैव टू चेक बाय डायगोनली. तो आई विल राइट अ डायगोनल मैट्रिक्स. तो 8 5 माइनस 2 माइनस 2. ठीक है. इसे जरा डायगोनल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करो. क्या करते हैं? पहले सब लोग इसे 0 कर देता हूँ. तो क्या करें इसमें? 1/4 से टाइम दिस. क्या करें बताइए? R2 में ऐड कर देना. हाँ R2 में R क्या करना है?
R2 प्लस 1/4 R1 है ना। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, अब R2 जब 1/4 करा तो 0 एंड 18 5 माइनस 2/4 हाँ 5 माइनस 2 कितना आ गया 9/2। 9/2 ठीक है, तो यहाँ 0 आके देखिए। नाउ आई वांट दिस 0, तो अगेन क्या करें, अब R1 में चेंज करेंगे। क्या करें, R1 प्लस 4/9 R2 है ना, क्योंकि R1 में 0 चाहिए। 4/9 करेंगे, 9 से 9 2 से 2 आ जाएगा। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 8, यहाँ 0 तो 80 था, 0 9/2। Now it is diagonal form and you can see both the diagonal entries are positive, so it is positive quadratic. तो 2 वेरिएबल में आप कोई इस सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे चेंज कर सकते हैं। थर्ड, अगर 3/3 की होती है तो 3/3 में फिर मुझे यहाँ पर वही आपके मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा के इसे डायगोनल एंट्रीज में चेंज करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में फिर देखते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं न्यूटन मेथड की इस पे। चलो पहले 2/2 की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी ये आई एम टेकिंग फ्रॉम योर अपर्णा मेहरा बुक, वो बुक तो आपके पास है नहीं। चलो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ मैं। यूज न्यूटन्स मेथड टू सर अगर 3/3 की उसमें 2 का लेके अगर सेम चेक कर ले सारे के लिए, अगर हो जाए तो वैसे नहीं हो जाएगा, सारे के लिए सेटिस्फाई कर ये कंडीशन। 2 बाई मतलब उसकी सब मैट्रिक्स ने 2/2, यस सर। तो वो तो फिर आपको 3C2 6 चॉइस बनेगी, उसे चेंज करना पड़ेगा। 3C2 3 बनेगी है। उससे हो पाएगा कि नहीं सर? उससे तो आई थिंक पॉजिटिव डेफिनेट चेक नहीं होगा। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए तो आपको ये होगा कि यू हैव टू चेक द डायगोनल, क्योंकि उसमें तो आपको सब मैट्रिक्स पता चल रही है। उससे क्या हो गया, मैट्रिक्स है हमारी 3/3 की एंड यू आर चेकिंग ऑल 2/2 सब मैट्रिसेस। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। अगर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक है आप चेक करिएगा, अगर कुछ रिजल्ट ऐसा, हाउ टू चेक अ मैट्रिक्स पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। व्हाट आई रेड इज दैट इफ यू वांट टू चेक तो इस फॉर्म में हो, या फिर कोई आपका पॉजिटिव पॉलिनोमियल बन जाए। एक तरीका ये भी होता है कि आप अगर उसे सॉल्व करके लिखें तो इट शुड बी सम पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर मैं इसे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये हमेशा इट शुड बी पॉजिटिव। एक तरीका और होता है वो चेक करने का। आई थिंक इसमें एक मिनट, वन मोर वे इज देयर टू चेक इट कि इफ योर polynomial it is sum of positive terms. I think इसमें दिया हुआ है। एक हाँ, एक इसमें वन वे इज देयर कि इफ ऑल qx greater than equal to 0 for all x। एक ये भी डेफिनेशन है इसकी, आपकी कांति स्वरूप में दे रखी है पेज नंबर 20। अगर आई डोंट नो यू हैव द कॉपी ऑफ दिस नॉट इन योर स्कैन कॉपी विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव डेफिनेट का है, हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। इसे पॉजिटिव डेफिनेट बोला है ना बड़ा। हाँ इट इज, ये पॉजिटिव डेफिनेट वर्ड यूज एक्चुअली, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट। यस ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट लिखा है। तो वन वे इज देयर कि इफ यू आर, ये भी डेफिनेशन एक पॉजिटिव डेफिनेट की, द क्वाड्रेटिक फॉर्म qx x1 x2 xn and so on. This is positive definite if this qx, यहाँ x का मतलब आपका ये पॉइंट, अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ x1 x2 xn ना, यहाँ x का मतलब rn से, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉट 0। ठीक है,
x 0 के लिए तो 0 आ सकता है, लेकिन अगर मैं x नॉट 0 लूं तो इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट इज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। ओके, ये भी एक इसका वे है। तो यू हैव टू चेक कि अगर मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सिर्फ 0 पे 0 हो सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट 0, देन इट इज योर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक डेफिनेट। ये डेफिनेशन आपकी इसमें कांति स्वरूप पे पेज 20 पे दे रखी है, कुछ एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने। कांति स्वरूप में so here you can check if it is positive definite or not for by taking this. So example है q x1 x2 is equal to x1 square plus 5x2 square plus 7x3 square। अब देखो जब सारे टर्म पॉजिटिव होंगे और स्क्वायर में होगा तब तो आपको दिख ही रहा है ये 3 वेरिएबल में इनफैक्ट। So it is positive always and it is always positive, it is always, so you know it is always greater than 0 for all not x not equal to 0 where x belongs to R3 of course, है ना? ये हमेशा ग्रेटर देन आएगा नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव टर्म्स यस सर। तो ये आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होगी 3 वेरिएबल में। तो इन दिस वे यू कैन आल्सो चेक कि अगर हम उसको कुछ स्क्वायर बना के परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स, तो अगर सम होगा तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उस केस में आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इन दिस वे यू कैन आल्सो चेक। एक प्रॉब्लम कर रहे थे, प्रॉब्लम यूज न्यूटन्स मेथड। सर इसका भौंकू गिर रहा है ऊंचाई ये माइक म्यूट करो भाई अपना, क्या माइक हो वरुण शर्मा। यूज न्यूटन्स मेथड टू सॉल्व एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ f of x1 x2 is equal to 8 of x1 square minus 4x1 x2 plus 5x2 square। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम ले ली जो मैंने अभी ये लिया था आपका। तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, इसको चेक करना है, सॉल्व करना है हमें न्यूटन्स मेथड से। यू कैन सी इट इज अनकांस्टेंट और ट्रांजिशन प्रॉब्लम है, कांस्टेंट नहीं गिवन है ना। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि 2 वेरिएबल को आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है जो एडवांस कैलकुलस में आपने पढ़ा है ना, वो अभी आपका अनकांस्टेंट प्रॉब्लम के लिए। आई वांट टू अप्लाई न्यूटन्स मेथड। सो हियर आई ऑलरेडी नो कि a is 8 greater than 0 and b square minus 4ac it is less than 0. So this implies that this f of x1 x2 is positive definite quadratic form तो है ये। Now I want to find the minimum value। तो अगर आपकी पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है यू कैन स्टार्ट विद एनी वैल्यू, किसी भी इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी निकाल ले सकते हैं इसकी, और उससे मैं इसका नेक्स्ट जो वैल्यू निकालूंगा आपका फर्स्ट आइटरेशन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आइटरेशन क्या होता है xk + 1 = xk। तो आई नीड द इनिशियल आइटरेशन, इनिशियल वैल्यू मुझे चाहिए व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू। लेकिन अगर पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी लें, व्हाट एवर द स्टार्टिंग वैल्यू, फर्स्ट इटरेशन में यू विल गेट द आंसर। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू आई कैन चूज एनी वैल्यू, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, मैं कुछ ले रहा हूँ आप कुछ और लेके अगर चेक करना अपना तो आप देखेंगे सेम ही आंसर आएगा। सो आई एम टेकिंग, लेट अस स्टार्ट, लेट द स्टार्टिंग पॉइंट बी, सपोज मैं x0 लिख दे रहा हूँ, x0 सपोज आई एम टेकिंग 5,2। ओके, 5,2 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सपोज। सो व्हाट आई नीड, अब फॉर्मूला आपके पास क्या था, दिस इज द फॉर्मूला, x of k + 1 = xk
एंड माइनस हेसियन मैट्रिक्स एट द पॉइंट x के, इसका इनवर्स एंड ग्रेडियंट ऑफ x के. सो आई वांट ग्रेडियंट, तो फर्स्टली आई विल टेक ग्रेडियंट. यहाँ पर अब k0 लिया आपने तो x1 इज द वैल्यू, सो आई नीड ग्रेडियंट. तो डेल एफ x ग्रेडियंट को आई विल राइट इन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एज आई टोल्ड यू कि आई जे को हम कॉलम में लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है. तो फर्स्ट क्या होगा, डेल एफ ओवर डेल x1, हाउ मच बताइए. फर्स्ट रो इज व्हाट, 16x1 हाँ माइनस 4 x2 एंड व्हाट आउट सेकंड, 0 minus 4x1 हाँ चलो माइनस 4x1 10x2 प्लस 10x2. इट इज योर ग्रेडियंट. और एट द पॉइंट अगर मैं पॉइंट रख दूं यहाँ पे इनिशियल, तो इट विल बी हाउ मच, 5,2 रख दीजिए, 72 एंड माइनस 4 दिस इज एंड दिस इज 0 है ना. x1 is 5, so minus 5 4 5 are 20 plus 20. Now I will find, तो ये आपका ये टर्म आ गया. Now I will find Hessian matrix. Hessian matrix आपको मैंने क्या बताया था, it is your second order matrix. क्या होता है, del 2f over del x1 square del 2f over del x1 del x2, 2 by 2 की है तो सेकेंड ऑर्डर कितनी बनेगी, del f del 2f over del x2 del x1 and del 2f over del x2 square. दिस इज योर हेसियन मैट्रिक्स जो आपने वहां पर यूज करी थी, बॉर्डर मैट्रिक्स बनाया था जब सफिशिएंट कंडीशन में, लैग्रेंजीज मेथड. तो दिस इज योर सेकंड ऑर्डर. इज इट क्लियर. तो आई विल टेक सेकंड ऑर्डर. तो सेकंड ऑर्डर आपने करा तो डेल एफ ओवर डेल x1 तो ऑलरेडी था 16 4 है ना, एंड ये सॉरी माइनस 4 10. मैं इसको रिविजन कर दिया दोबारा. अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया कमिंग स्केलर्स, हमें एट अ पॉइंट चेक करना होता है. तो आई वांट एट अ पॉइंट 0. नाउ बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वेरिएबल फ्री, तो यही रहेगी बस. अगर कोई वेरिएबल आता तो उसमें वैल्यू पुट कर देते x0 की, बट हेयर इट इज कमिंग, तो ये आ गया. नाउ आई विल फाइंड इट्स इनवर्स. इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स लेना है फॉर्मूला पुट करने के लिए. सो इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स तो 2 by 2 का निकालना आता है आपको भाई. क्या करते हैं, चेंज द डायगोनल एंट्रीज, चेंज माइनस साइन ऑफ डायगोनल. ये डायगोनल एंट्रीज होती है, ये ऑफ डायगोनल है ना, और डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 160 माइनस 16 144. सो इट विल बी कमिंग 144. और डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दीजिए तो 10 और 16, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं, तो दोनों माइनस है तो क्या बन जाएंगे, ये 4 है ना. ये डायरेक्ट तरीका होता है. अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो आप मालूम है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, है ना, ये लगा सकते हो. लेकिन 2 by 2 के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, टाइम सेव होगा आपका. 1 by डिटरमिनेंट ऑफ दिस, चेंज द डायगोनल एंट्रीज एंड माइनस टाइम्स ऑफ डायगोनल एंट्रीज. चलिए, तो ये आपके पास इनवर्स आ गया. सो नाउ आई विल फाइंड यू माय फर्स्ट वैल्यू x1 है ना. यहाँ फॉर्मूले में रखा हमने, k की जगह 0 रखा है तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस हेसियन ऑफ x0 its inverse and gradient x0. It is the value of first iterative value. So x0 you already got. क्या है, देखो यहाँ पर x0 को मैं अब यहाँ पे कॉलम में लिखूंगा. ये मैट्रिक्स ये एक्चुअली आपके पास कॉलम में आएगा यहाँ पे, क्योंकि आई एम राइटिंग इन एवरीथिंग, आई एम राइटिंग इन अ कॉलम, कीप इट माइंड है ना. तो इसे हम कॉलम में लिख रहे हैं 5,2 माइनस 1 by 144 10 4 4 16, और ग्रेडियंट को भी मैंने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा था तो इट वाज कमिंग 72 0 है ना. सब कॉलम में लिखना, ये ध्यान रखना. तो हाउ मच इट विल बी, यू कैन फाइंड इट नाउ. क्या है ये, तो 5 and 2
अब इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स है ये, इट इज 2/2 एंड इट इज 2/1, तो 2/1 की मिलेगी, 1/44 यू कैन कीप आउटसाइड, 10 into 72 एंड ये कितना होगा देखो, 10 into 72 कितना हो गया, 720 प्लस 4 into 0 0। ऐसे ही 4 into 72 हाउ मच, अब इस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8 28 है ना, एंड प्लस इनटू दिस, तो ये तो आएगा आपके पास, कितना आएगा, 2 रो 1 कॉलम, ये कितना है देखो, 5/2 आ गया। सेम ही आ गया, आंसर क्या हो गया, 0 Zero. 0। सो इट मींस x1 bar is 0, x2 bar is 0। this is the minimize, this is the point of minima, ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम ऑफ f x1 x2 विल बी हाउ मच, 0 है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास अगर आप कर्व प्लॉट करेंगे तो 0 पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, इसे आप प्लॉट करके देख सकते हैं, हो सकता